خدا کرے آپ کو آب کوثر نصیب ہو اماں. شکریہ میرے بچے. تو اب جب کہ تم سیراب ہو گئے ہو تو اٹھو اور اپنے گھر لوٹ جاؤ. تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے. میں کوفے میں غریب الوطن ہوں اماں. میرا کوئی گھر اور ٹھکانہ نہیں ہے. کوفہ اجنبیوں کا قاتل ہے بیٹا. اس 1000 چہرے والے شہر کیوں آئے؟ ہم کوفیوں کے بلاوے کے مہمان تھے. تمہارا نام کیا ہے؟ مسلم ابن عقیل. میرے سر پہ خاک. تم مسلم سفیر فرزند رسول ہو؟ کیا مجھے صرف آج کی رات اپنے گھر میں پناہ دے سکتی ہیں؟ صرف اپنے بیٹے بلال سے خوفزدہ ہوں، جو کہ ایک نااہل لڑکا ہے اور نیچ قسم کے لوگوں کے ساتھ میخاری کرتا ہے. رات سے لے کر فجر کے اذان تک میخاری اور عیاشی میں مصروف رہتا ہے. فجر کے قریب گھر آتا ہے مست و مدہوش حالت میں. ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ نہ سمجھ سکے. کیا ہوا حبیب؟ کیا کیا تم لوگوں نے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ گھروں پر مردے کی خاک اڑا دی گئی ہو. چیخ چیخ کر ہمارے گلے تھک گئے. دیوار سے تو آواز آئی مگر کوفیوں کے گھروں سے نہیں آئی. میں محل کے سامنے بھی گیا، کوئی نہیں تھا. جناب مسلم کہاں ہیں ابن سجا؟ نہیں جانتا حبیب، میں نہیں جانتا. جب میں آیا تو کوئی بھی نہیں تھا، نہ محل کے سامنے نہ مسجد کے اندر. یعنی تم ان کے ساتھ نہیں تھے اے ابن سجا؟ نہیں، تم گئے تو ہم بھی گئے گلی بند کرنے کے لیے، مگر کوفے کی زبان دراز عورتوں کو نہ روک سکے. مجبوراً ہمیں راستہ کھولنا پڑا. مجھے شرم آئی کہ خالی ہاتھ جناب مسلم کے پاس جاؤں. میں اپنے سر پہ خاک اڑانے گیا تھا مگر وہ بھی نہ کر سکا. جب آیا تو کوئی بھی نہیں تھا. جناب مسلم کوفے میں غریب ہیں حبیب، وہ یہاں اجنبی ہیں، معلوم نہیں کہاں گئے ہوں گے. لعنت ہو کوفہ اور کوفیوں پر. کوفہ عصیب ہے، کوفہ منحوس ہے، کوفہ جادو نگری ہے، کوفہ بزرگان دین کا قاتل ہے، کوفہ جانوروں کا شہر ہے. خود کو سنبھالیں حبیب، ہمیں جناب مسلم کو ڈھونڈنا ہوگا. آخر کیسے؟ کس محلے میں؟ کس قبیلے میں؟ تمام گلیوں میں سپاہی اور فوجی پھیلے ہوئے ہیں. جب تم آئے تو نہیں دیکھا. کیا ہوا حبیب؟ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے کوفہ اور کوفیوں سے گھن آ رہی ہے. وہاں جا رہا ہوں جو اس طرح آفت زدہ نہ ہو. حسین کوفی کی راہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. خدا کی قسم میں بھی اس کافرستان سے بیزار ہوں. رکو تاکہ نکلنے کا چارہ کر سکیں. چارہ کار نہیں ہے ابن سجا. مجھ میں رکنے کی اب سکت نہیں رہی. عاشق حسین دریا کا رخ کرنے جا رہا ہے.
चुप रहो बस अब तंग मत करो इब्ने अज़ल। मैं तुम्हारी तरह गया गुजरा नहीं। तुम्हारी नानी मेरे लिए दुल्हन लाने वाली है, बिल्कुल चांद सा चेहरा। खुदाया, कैसा गधा है ये, कम से कम एक ढंग की औलाद दी होती। बिलाल, बिलाल। कल रात में हर रात से पहले घर गया। दोस्तों ने बहुत जिद की कि रुक जाओ, थोड़ी सी और पी ले, कुछ ऐशो नौश कर ले। मैंने कबूल नहीं किया। बस उन लोगों की बातों से चिढ़ता हूँ, वरना मुझे इस शराब हराम की भी कोई परवाह नहीं है। जितना पिला लो पी लूंगा। मुझे डर है कि उस बूढ़ी औरत ने मेरी उठने की आवाज ना सुन ली हो और मुझे बद्दुआ ना दे दी हो। कहते हैं कि माँ की बद्दुआ जल्दी असर करती है। वैसे सलार साहब, खुदा ने चाहा तो इन दिनों में इंशाल्लाह शराब नोशी की इजाजत तो मिल जाएगी ना? शराब नोशी को खुदा ने हराम किया है माँ, इसकी कौन इजाजत दे सकता है? मैंने सुना है कि अमीरुल मोमिनीन यजीद बजाते खुद शराब और शेर वाले हैं। शराब पियो, मिंबर जलाओ, लेकिन लोगों को तंग मत करो। तुम्हारा मुंह हमेशा इतना ही गलत सलत चलता रहता है गधे। गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अगर मुस्लिम को तुम्हारे घर में ना पाया तो फिर देखना क्या हशर करता हूँ। कैसी बातें कर रहे सलार? मैं उससे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि वो मुस्लिम है या नहीं। जैसी निशानियां आपने बताई उनके मुताबिक तो वही होना चाहिए। बिलाल, बिलाल, कहाँ चले गए मनहूस लड़के? तुम तो हमेशा जोहर की नमाज तक सो रहे होते थे। आज सवेरे सवेरे किस जहन्नम में चले गए हो? घर का मुहासरा किया हुआ है इब्ने अकील। तुम्हारे पास राह फरार नहीं है। तलवार उठाए तो घर को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना देंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। है बिलाल, मनहूस बगैर बाप के शराबी लड़के। ये एक हाशमी है बिन हुरैस, अरब के शेरों के कबीले से है, अली और हमजा के खानदान से है। जब तक उसके हाथ में तलवार है बहुत मुश्किल है इस पर काबू पा सके। मैं मुस्लिम को मारना नहीं चाहता इब्ने अशश, उसे अमान दे दो, शायद कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो।
बच्चा है जो मुझे एक घूंट पानी दे दे। इब्ने अकील, मैं इब्ने अशद हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। अगर मजीद लड़ते रहोगे और हमारे आदमियों को कत्ल करते रहोगे तो अमीर खून के किसास के तौर पर तुम्हें भी कत्ल कर देगा। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं अपनी इज्जत की जबान देता हूं कि तुम्हारे लिए अमाननामा ले लूंगा। कोई बात करो मुस्लिम। मुझे मार दोगे या अमान दोगे? क्यों पूछ रहे हो? मैंने अमान के वादे पर तलवार रोकी है, वरना मैं तस्लीम ना होता। मैदान जंग में मारा जाना मेरे लिए ज्यादा बाइज्जत मंजिल थी। हाशमियों के सर उठाने से खुदा की अमान। असीरी की हालत में भी रजस ख्वानी करते हैं। ये लोग इल्तमास के लफ्ज को तो पहचानते ही नहीं। हम सिर्फ खुदा की बारगाह में इल्तिमास करते हैं। तो फिर खुदा से इल्तिमास करो, शायद वो तुम्हारी दुआ सुन ले और मुझे तुम्हारे कत्ल से रोक दे। खुदा से तलब मगफिरत करता हूं। मैंने कहा था ना, हाशमियों का गुरूर उन्हें खुदा के आगे भी इल्तिमास करने नहीं देता। तुम्हें कत्ल कर दूंगा मुस्लिम। मैं जानता हूं कि तुम इतने सखी नहीं हो कि अपने दुश्मन को बख्श दो। मैं अपने किसी ऐसे जानने वाले को वसीयत करना चाहता हूं जो इस वक्त यहां मौजूद हो। बिस्मिल्लाह। ऐ इब्ने साद, मेरे और तुम्हारे बीच रिश्तेदारी है। मैं तुम्हारे जरिए एक वसीयत करना चाहता हूं, एक राज की तरह। मैं कोई अच्छा राजदार नहीं हूं, मुझे माफ कर दो। ऐ पिसरे साद, मुज़ायका मत करो। ये बात मर्दानगी के खिलाफ है। तुम्हारा अजीज मौत के दहाने पर खड़ा है, उसकी वसीयत तो सुन लो। अगर उसकी वसीयत सुन लूंगा तो फिर मुझे उस पर अमल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। हरचंद के उस जैसे की वसीयत पर अमल करना जो कि मुर्तद है, सवाब भी नहीं और गुनाह भी नहीं। तुम्हारी गैरतमंदी और मर्दानगी बढ़ जाएगी इस तरह। वसीयत पे अमल करना आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो क्या? फिर भी उस पर अमल करने को मर्दानगी समझते हैं। अब तक तुमने उसकी वसीयत नहीं सुनी बंदे खुदा। अगर उसकी दरख्वास्त मेरे जाती मफादात के खिलाफ हो, पूरा कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसकी दरख्वास्त शरीयत मुकद्दस के खिलाफ हो तो अमल ना करना, उसका कुफ्फार अदा कर देना। वसीयत सुनाओ मुस्लिम। मेरे चचेदाद भाई हुसैन इब्ने अली को लिख दो कि कूफा ना आए, लौट जाए। मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को दफना देना कि जमीन पड़ा ना रह जाए। मैं कूफा में 700 दिरहम का मखरूस हूं, वो अदा कर देना। मेरी ज़रा और खुद को बेच के अदा कर देना।
जानते हो वो मुझसे क्या चाहता है? वो तुम्हें अमानतदार जानता है उमर। राजदार रहो। अमानतदार कभी खयानत नहीं करता। हर चंद के बाज औकात खयानतकार शख्स को अमीन बना दिया जाता है। खूब मुस्लिम, तुमने वसीयत कर दी? कोई और ख्वाहिश है? मैं प्यासा हूं, थोड़ा सा पानी दे दो। बिन हुरैस, इसे पानी दे दो, मगर उस प्याले में जिसमें हराम गोश्त जानवरों को पानी देते हो। वो मुर्तिद हो गया है और जिस चीज को मुंह लगाएगा वो शरन नजस हो जाएगी। जी अमीर। मुर्तिद तो तुम हो कि बगैर किसास उस बंदा खुदा को कत्ल करते हो कि जिसका कत्ल करना हराम है। जो शख्स सिर्फ अपने गुस्से और सूए ज़न की बिना पर लोगों का कत्लेआम करता है वो मुर्तिद कहलाने का ज्यादा हकदार है। तुम जैसे शख्स की सांस और पसीना नजिस है जिसने अपने दिल को इब्लीस का घर बना लिया है। इब्लीस तो तुम हो कि नफ्स की ख्वाहिश की बिना पर खलीफा मुस्लिमीन पर खुरूज करते हो और वलीउल मुस्लिमीन पर तलवार उठाते हो और मुसलमानों के दरमियान तफरका पैदा करते हो। तुम्हारा मुर्तिद होना बिल्कुल मुसल्लम है। मैं तुम्हें खुदा की रजा के लिए कत्ल करूंगा, ना कि गुस्से और सुए ज़न की वजह से। खुदा की कसम, तुम झूठ की जड़ हो। अगर इस गिरोह के पास राई के दाने के बराबर भी खौफ खुदा होता तो तुम्हारे झूठ की गवाही देते। अफसोस, अफसोस के दुनियावी ताल्लुकात ने मुसलमानों को इतना गिरा दिया है कि उनमें इंसाफ, शुजाअत और ईमान भी खत्म हो गया है। हम एक गासिब खलीफा के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमने कैसर और कसरा जैसे शख्स के खिलाफ तलवार उठाई है। हमने निफाक नहीं किया, इत्तिहाद किया है। इराक के लोगों के 12,000 खतूत हमारे गवाह हैं। क्यों पानी नहीं पिया? मेरे मुंह का खून माने हो गया। देख लिया ना, खुदा भी तुम्हें पसंद नहीं करता। वो चाहता है प्यासे मरो। ये पानी मेरे लिए था ही नहीं, वरना खुदा की रहमत का दरिया बेकरां है। शायद प्यासा मरना मेरे जिहाद के अजर को पूरा कर देगा। तुम लोगों का खुदा के बारे में जो गुमान है वो तुम्हारी तरह हकीर है। खुदा को इंसान नुमा कोई चीज समझ रखा है क्या? अपने गुनाह की फिक्र करो मुस्लिम, खुदा की मार्फत अपने पास रखो। क्या तुम लोग ये गुमान करते हो कि खिलाफत में तुम लोगों का कोई हक है? गुमान नहीं है, यकीन है। सुन लिया आप लोगों ने भाइयों, सुन लिया? उमवी और अलवी के झगड़े की जड़ यही दावा है। जब देखो बहाने ढूंढते रहते हैं। अब दीन का क्या होगा, सुन्नत पैगंबर का क्या होगा, कुरान का क्या होगा, अहकाम दीन का क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये रसूल खुदा का सही और मुहक्कम कौल है। बिदअत ले आया है। बिदअत अलवियों का कोई विरासत का दावा नहीं है। इनका खिलाफत में हक है तमाम मुसलमानों की तरह। खिलाफत उम्मत के नेक, साले, मुकर्रब और मोमिन लोगों का हक है। खुदा की कसम, अली और उनकी औलाद उम्मत के मुकर्रब तरीन और बातकवा तरीन लोग हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। अली से पहले के खुलफा ने भी अली की दयानत, तकवा और इल्म की गवाही दी है। खामोश झूठे, अपनी झूठी बातों खुलफा से मंसूब करते हो। खुदा की कसम, तुझे ऐसे मारूंगा कि दीन के आगाज से लेकर आज तक किसी को भी इस तरह नहीं मारा गया होगा। हाँ, तुम वही हो कि वो बिद्दत दीन में लेकर आओगे जो पहले कभी न थी। नामर्दाना कत्ल और आज़ा का कता करना और लाश को बरहना करना और घोड़ों से पामाल करवाना तुमसे कुछ भी بعید नहीं। कोई है जिसने इस मुर्तद से कोई जख्म खाया हो? मैं हूं अमीर, बुकैर इब्ने हुबरान अहमरी। ये वो जख्म है जो मुस्लिम इब्ने अकील ने मुझे दिया है। बुकैर,
اسے محل کی سب سے بلند جگہ سے گرا دو اور اس کے بدن سے اس کے سر کو جدا کر دو. جی امیر. چلو. سلامت رہو ابو اسحاق. تم بھی سلامت رہو خبر رساں کبوتر. آج کل کیا ایرانیوں کے افسانوں کے مرغ سے مشابہت رکھتا ہے. اس کا نام ہی لینا کافی ہے تاکہ فوراً مد مقابل سامنے آ جائے. وعدہ پورا ہوا کیان؟ دیر تو نہیں ہوئی ہمیں. تاجیل اور تاخیر تمہاری نہیں تھی. تم جو بھی کر سکتے تھے تم نے کیا. کنایوں میں بات کر رہے ہو کیان؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ تنہائی چاہیے ابو اسحاق. کچھ ایسی خبریں ہیں جو صرف تمہیں پتہ چلنی چاہیے. قیام جناب مسلم ٹوٹ گیا ابو اسحاق. کوفی بغیرتوں کی طرح بھاگ گئے. جناب مسلم تنہا رہ گئے، مارے گئے. مارے گئے؟ ایسا تو نہیں کہ پھر کوفیوں کے تبلے پھٹ گئے ہوں بن کامل؟ غلط کیوں سوچتے ہو ابو الحدید؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا.